Starting recording. All right, okay. Good evening, friends. Today I'm here to welcome veteran Major Muhammad Ali Shah, who is a veteran speaker. He has record of Guinness Book of Records of highest speaking in TEDx. And apart from that, he is a very good actor, and his movies, upcoming movie is Yara. Right, we all are looking forward to it. But before I speak much, let me take you all to Major Muhammad Ali Shah. Major Muhammad Ali Shah, please welcome to my show. Thank you, Abba. Thank you very much. An honor to be here. An honor to speak to you. You are one of my favorites from the PSI group. And Thank you you. are an inspiration in itself. You are doing fabulous work. Thank you so much, Major Ali. So, my first question to you is, I want you to give your details because if I'll speak for you, it will be just like showing light to sun. So, please give details about what you do, everything. Yeah, What do I do? Well, I'm a motivational speaker. yeah. I'm a motivational speaker not because I am smarter or more intelligent or more talented or wiser than any one of the people who listen to me. No, not at all. I'm a motivational speaker because I have made more mistakes than perhaps anyone else could have ever made. I have seen perhaps more failures than anyone could have ever seen. I have seen more hardships, more heartbreaks, more struggles, more disappointments than anyone could have ever have seen. But let me tell you, those failures, those hardships, those disappointments today made me. True. And my failures I spoke about have become my biggest strength today. Because as a motivational speaker, today people, they have been big companies like, I would say HDFC Life Insurance, who paid me ₹1,000,000. That's over a 10 lakh rupees for for one contract, speaking contract. It was a big break for me. Yeah. Not to hear of success stories, but my failure stories, how I overcame failure. बैंगलोर से जब जहाज आया था पहली मर्तबा, किसी ने एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक प्राइवेट जहाज भेजा था मेरे को बॉम्बे से ले आके बैंगलोर उड़ा के बात करने के लिए, और उस दिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ ली थी. क्या बात है? क्यों? बार बार तो मौका नहीं मिलता ना प्राइवेट जहाज में उड़ने का, तो खींच खींच के मैं सोशल मीडिया में अपलोड करता गया था. वाला कहानी है. बट आई एंड आई फील गुड अबाउट दैट. When people get affected by my talks, when people write to me that because of you, we didn't give up, we continued trying. Yes. So I'm a motivational speaker today because I feel if I can bring about a difference or the positive in someone's life, उससे बेहतर बढ़कर खुशी कामयाबी कुछ है नहीं जिंदगी में. True. Very true. और मैं yeah. थिएटर I come from a theatre background. I've done a lot of plays. बहुत plays करे हैं मैंने, और मैं बचपन से करता आया हूँ. और my theatre background has helped me to become the motivational speaker that I am today. क्योंकि see, theatre में हम audience को address, you break the third wall. Yes. अब public speaking is, I will not call it similar, but वो भी एक तरीके का theatre हो गया एक तरीके का. True. So my theatre experience has helped me as a public speaker, and my theatre background has helped me in television, web series and films as well. अभी 30 जुलाई को एक फिल्म आ रही है यारा, Yes. directed by तिग्मांशु धुलिया, National School of Drama graduate, National Award winner. उन्होंने मेरा काम देखा था. विशाल भारद्वाज की फिल्म आई थी हैदर में. हैदर में I had a small but a very powerful role. उनको वो वहां पे मेरा काम पसंद आया था. Then he signed me up for Yara. अब यारा में विद्युत जामवाल, श्रुति हसन, अमित साध, संजय मिश्रा, विजय वर्मा, केनी बासुमत्री, अंकुर विकल, श्रेया नारायण, कई सारे अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं, एक्टर हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े स्टार हैं, because being a star is actors, exactly, and that's what I am aiming at. मेरा दाखला नहीं हुआ था NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, कॉलेज के बाद. मगर आज की एक बार नहीं, 2 दफा, 2001
एंड 2002 एंड 2001 में मतलब अभी जो फेमस एक्टर हैं, बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी साहब, he was with me in 2001. We tried at the same time. Very old dear friend of mine since then. Pankaj made it, I didn't make it, but we kept in touch. And we used to appreciate each other for the passion, for the craft. बाद में पंकज के साथ मैंने फिल्म में भी काम करा. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई थी द टैशकिंद फाइल्स. उसमें मेरा एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त सीन है जो फिल्म में नहीं है, कट गया था, वो यूट्यूब पे है, मगर आप देख सकते हैं, नसीर साहब के साथ, विद मिस्टर नसीरुद्दीन शाह. Just two of us in the frame, and very good scene, very powerful scene. He has been my guru, my mentor, my teacher as an actor. I've learned the craft from him. So जो उन्होंने सिखाया by conducting workshops at the National School of Drama, जो मैंने खुद सीखा पूना दिन में अपने ग्रेजुएशन के टाइम में at the Film and Television Institute of India without enrolling over there, वहां पे छोटी फिल्में बनती थी, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, उनको मार्क्स मिलते थे, नंबर मिलते थे, दे यूज्ड टू बी ग्रेडेड ऑन दोस फिल्म्स. उन फिल्मों में एक्टिंग करी, और जहां पे रोल नहीं होता था मेरे लिए, वहां पे उसी फिल्म में एज अ ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय एक तरीके से लिफ्टिंग द कैमरास, ट्राइपॉड, सबको चाय पिलाना, पानी पिलाना, सेट It is सिना, also सबको learning, yeah. लर्निंग एग्जैक्टली. वहां पे और मेरे को खास स्पेशल परमिशन मिली थी, अनुमति मिली थी उनके साथ डबिंग में कैसे होती है, डबिंग एडिटिंग कैसे होती है, उनकी फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप्स में बैठना. एवरी डे देयर इज अ फॉरेन फिल्म एट द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया. अब होती है कि नहीं होती मुझे मालूम नहीं, हमारे जमाने में उस टाइम पे होती थी, 98 टू 2001 की बात बता रहा हूँ मैं. तो वहां पे एट वन मिस्टर पुणे टैलेंट एज वेल. तो एक्टिंग चीज ऐसी है, दिस क्राफ्ट, पब्लिक स्पीकिंग भी एक ऐसी चीज है, कोई आपको सिखा नहीं सकता. सॉरी टू से, इट्स अ फैक्ट. आप सीख सकते हैं. यू विल नीड अ मेंटोर जिससे आप सीख सकते हैं. वी डोंट हैव अ मैजिक वैंड. मेरे पास लोग आते हैं, सर हमें पब्लिक स्पीकिंग सिखाइए. मैं कहता हूँ भैया देखो, ये काम मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा. I can share my some techniques and some tips and some knowledge from with you, and the way I have practiced for it. सीखना तो आपको खुद को है. True. So आज की तारीख में मैं विस्लिंग वुड्स, जो सुभाष घई का विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है बम्बई में, फिल्म सिटी में, वहां पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ. और ये वही लड़का है जो एनएसडी में इसका दाखिला नहीं हुआ था तब लड़का, अब तो खैर नाउ नहीं, you're still लड़का. So I believe whatever you do, you should do it with passion. जब तिग्मांशु धुलिया signed me up for Yara, I must tell this to you and our viewers. तब क्या हुआ था? He called me, he said, I loved your work. You were very good. And the role is of a Sikh police officer. मैं Sikh नहीं हूँ, नहीं मैं शायद कहीं से दिखता हूँ. उस दिन मैंने कहा भाई उनको इतना फेथ है, ये एक्टर उस रोल को जो मेरे जहन में है, जो मेरे दिमाग में उतार के लाएगा. You need to have faith in the people, you know, you are assigning jobs with. You don't have faith, तो क्या आप जॉब असाइन कर रहे हैं? He had that faith. और वो मंजे हुए कलाकार है, मंजे हुए मास्टर क्राफ्ट्समैन. मैं फिल्म साइन करी, एंड एक्चुअली चेन स्मोकर अभा. ये सुनिए किस्सा. मैं चला गया अमृतसर. अमृतसर में मैं एक छोटा सा रक्साक था, एक छोटा सा बैग था मेरे पास, 2 जोड़ी कपड़े थे, अपना दंत, टूथब्रश, टॉयलेटरीज, सोप, टॉवल, ऑल दैट. एंड जब मैं गोल्डन टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ गोल्डन टेम्पल को देख रहा था, 10 मिनट तक बस मैं देखता ही रहा. स्वर्ण मंदिर देखता ही रहा. मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली. फिर मैं अंदर गया, लोगों से मिला, अपना तारुफ करवाया. मैं लोगों को बताया कि मेरा नाम अली है और मैं सिखिज्म के बारे में सीखना चाहता हूँ. मोहम्मद अली शाह, उनको मालूम था दैट आई एम मोहम्मद अली शाह. उन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी, बहुत कदर से, प्यार से, अफेक्शनेटली मेरे को दिखाया अराउंड गोल्डन टेम्पल, दोस्ती करी लोगों से. मैं वहां पे 1 महीना रहा था. मैं वहां पे डूइंग सेवा, फर्श पे झाड़ू लगाया करता था, पोछा लगाया करता था, लोगों के झूठे बर्तन उठा के उनको धो के
खाना परोस के उसमें सर्व किया करता था, जितना भी वहां पे सेवा का काम था सब किया मैंने, एंड आई फाउंड मेरे खुद के अंदर एक अलग सा पॉजिटिव बर्ताव आ रहा है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, हाँ, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। मैं दाढ़ी उगानी शुरू करी, अपने बाल जिसको कहते हैं केश, केश उगाने शुरू करे, और मैंने 2.5 साल 2.5 years आई केप्ट दैट बियर्ड एंड दैट दाढ़ी एंड दैट हेयर। मैंने पगड़ी बांधनी सीखी। क्या बात 6 मीटर की पगड़ी कैसे बांधते हैं मैं खुद बांधता था मैं। एंड आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ सिख एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ सिख। भाई मैं चेन स्मोकर था, चेन स्मोकर। you left on smoking then? मैंने सिगरेट एक दिन में छोड़ी है, क्या एक बात दिन में। सरदार सिगरेट नहीं पीते मैं, रिस्पेक्टिंग दैट आई लेफ्ट स्मोकिंग कंप्लीटली। great. हाथ में कड़ा डाला, एंड जब दाढ़ी पगड़ी अच्छे से हो गई थी तब मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी, क्या बात है। कंप्लीट करी मैंने। गुरुमुखी नहीं, गुरुमुखी इज स्मॉल, इट्स लाइक अ बुकलेट, बट गुरु ग्रंथ साहब जी इज द बिग वन, द होली बुक। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग दैट। व्हाई? आई विल टेल यू। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? दाढ़ी चिपका दो, पगड़ी पहन लो, असी तुसी कर लो, रोल हो गया। हो गया। हाँ। मैं कहा जब तक मुझे खुद यकीन नहीं होगा कि मैं जसजीत सिंह हूं, अली नहीं हूं, जसजीत सिंह हूं, मुझे खुद यकीन नहीं होएगा, मैं औरों को क्या यकीन दिलाऊंगा? So it is trust in yourself, right? And करेक्ट, your ट्रस्टिंग माई सेल्फ। dedication made you do that. थैंक्स अमा। Yeah. सो मैंने कहा भाई जहां, और उसी टाइम पे वो उस दौरान की बात है, हैदर, उसके बाद मेरे को अगली फिल्म मिली थी, छोटा रोल था उसमें, वो सलमान खान की फिल्म थी बजरंगी भाईजान, जिसमें भी नेशनल अवार्ड मिला था जिसको भी। तो उसमें बड़ा अच्छा रोल मिला मेरे को, बहुत ही बेहतरीन रोल था। तब मैं दाढ़ी और केश बढ़ा चुका था, सो आई कुडंट डू द रोल दैट दे हैड इन माइंड फॉर मी, बट यस आई वाज पार्ट ऑफ द टीम ऑफ बजरंगी भाईजान। और मैंने एक छोटा रोल, छोटे किरदार किया है बजरंगी भाईजान में, प्रिजन ऑफिसर का। अब लोग कहते हैं भाई तुम कहाँ थे बजरंगी भाईजान में, नजर नहीं आए। तुम हैदर में कहाँ थे, नजर नहीं आए। आई विल टेल यू। अब यारा जब आएगी ना, उसमें भी लोग तुम कहाँ थे। जब मैं डबिंग करने गया यारा की फिल्म के बाद, तो द पीपल ओवर देयर इन द डबिंग स्टूडियो, द डायरेक्टर साहब ऑफ डबिंग, ही थॉट कि जसजीत की डबिंग करने के लिए कोई और एक्टर आया है, कोई और डबिंग आर्टिस्ट आया है। I look totally different. Yes, Ali, yes, of course. and They have you've seen seen the you in, photograph. yeah, they have seen you in beard and with kesh and pagdi and everything. Correct. Yeah. उनको तो वो जसजीत दिख रहा था ना वहां पे, Yeah. और यहाँ पे तो गया अली, क्लीन शेवन अली। नहीं तुम नहीं हो। मैं सर वो मैं ही हूँ, मैं ही डबिंग करूंगा। ये पर्दे पे, बड़े पर्दे पे लगाया, ये तुम हो। हाँ सर ये मैं हूँ। सो व्हेन ऑडियंस सी इट दे विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। अब जो स्टार होंगे, इफ आई हैड बीन अ स्टार आई वुड हैव बीन वेरी कॉन्शियस। सी आई गो टू जिम, आई एक्सरसाइज, मेरे भी 6 पैक एब्स हैं भैया, मगर आई इंस्टेड ऑफ लुकिंग ग्लैमरस I would rather choose to look the part. True. Whether you look good, whether you're good looking, or you choose to look good. I chose to look good, as in look the part. Yes, as an actor. जो जसजीत, as an actor, जो जसजीत सिंह को लगना था। मैंने कई सारे आईपीएस ऑफिसर से बात करी, मेरे दोस्त लोग हैं आईपीएस में, सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर, सबसे बात करी, बोला कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है, अगर एक गैंग के पीछे है एक पुलिस ऑफिसर और उनको पकड़ लेता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है जब वो डिस्क्लोज करता है। वो पूरा मैंने समझा, क्योंकि आई फील एज एन एक्टर साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैंने वो सब इस कैरेक्टर में निभाया है। अब इस कैरेक्टर की शूटिंग के बाद सोचिए 2014 और ये 2020, कितने साल हो गए? 6 years. 6 years I had to wait for the release of this film. Need a lot of भाई patience. need a lot of patience. Yeah. और इन 6 सालों में मैंने क्या करा? मैं थिएटर किया, मैं नाटक करे, मैं TEDx टॉक्स, लास्ट ईयर की बात है, मेरा पहला इनविटेशन आया था अमृतसर से TEDx टॉक का। और लोगों ने मेरे को उस टाइम पे ना, जब मैं गोल्डन टेम्पल में था अमृतसर में, मेरे को बहुत लोग, ग्रंथी साहब, बहुत लोग आशीर्वाद दे देते, कहते थे कि वाहिगुरु की कृपा, मेजर मोहम्मद अली शाह आपके सिर पे हमेशा बनी रहेगी। और जब मेरी
पहली TEDx टॉक थी ना अब, वो अमृतसर में हुई थी Wow. सालों बाद. Does the seva और resulted? Yeah. maybe I think God was kind. God was watching my Yes. efforts and hard work and the sincerity, devotion and dedication. मैं अब फर्श के ऊपर चादर बिछा के जमीन पे सोया करता था. रोज सुबह 4 बजे उठ के डेग में चाय बनाया करता था मैं. Not for any credit. So I felt it. I felt good. I yes, wanted to do it. I was convinced. जब तक हम खुद कन्विंस नहीं होंगे हम दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएंगे. आप गारंटी दे रहा हूं मैं. that was the कुछ भी कर inner लीजिए. devotion and inner spirit you had, which made you do all these things. वरना एक्टिंग तो करेक्ट. करने के लिए सभी आते हैं, बट कितने लोग उस चीज को फील करके जब हम करते हैं तो डेफिनेटली इट comes as a good, not only good acting, but it also teaches us a lesson of life. As you करेक्ट. said, you करेक्ट. left smoking. So उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? पहला बदलाव सबसे बड़ा, कि एक ही दिन में इतना बड़ा डिसीजन. So totally commendable, Major. My next question goes like, what is that one particular thing which keeps you motivating, which keeps you charged? One is, of course, when I interact with my friends. Others, when I remember my days when I have hit the rock bottom. I've seen a phase and stage of my life. I had really hit the rock bottom. I was broken. I was shattered. But I didn't give up. And when you hit the rock bottom, when you hit the lowest of your life, there's only one way to go from there. And the only one way to go from there is only up, 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 up. There's no other way. So And secondly, there is always light at the end of the tunnel. हमेशा रात के बाद सवेरा होता है. हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल बुरा वक्त कभी नहीं रहता. बुरा वक्त गुजर जाता है, टल जाता है. जी. आपको हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए. भाई ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा. एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी चार्ज. मुझे जो दिखता है ना, मेरे को हमेशा मछली की आंख नजर आती है. बा आई एम सो फोकस्ड इन लाइफ. आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ. ये बात मेरे को क्लियर है. Great. और मेरे को अभी जो दिखता है अपने फ्यूचर के बारे में, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखता है. और मैं जानता हूँ कई लोगों की दुआएं भी हैं मेरे ऊपर, और दुआएं बहुत असर जाती है, बहुत काम आती है. Correct. एंड ऑफ कोर्स, स्पीकिंग टू माय डियर फ्रेंड Abba Yadav keeps me charged again. Oh, that's so nice of you. Okay, now coming to my next question. What kind of book you prefer to read? That keeps you on moving on and on. Like there are certain few types of books which we love to read. So what kind of books you read? Basically, I'm an avid reader. I love to read, and I would read anything and everything I would lay my hands on. Now, having said that, especially philosophical books, such as Jalaluddin Rumi's philosophy. He says, never grieve anything that you lose. It comes back to you in a different form. What you are seeking is seeking you. Yes. The power of positive thinking. Dale Carnegie की books, Norman Vincent Peale की books, Rhonda Byrne ने एक किताब लिखी थी The Secret. I have read it and I'm motivated by that book. Fantastic. Yeah, these are the books which you, apart from fiction, of course, because reading is to the mind, what exercising is to the body. Yes. अगर पढ़ते रहेंगे ना हम लोग, हमारी नॉलेज बढ़ेगी. नॉलेज बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी. नॉलेज इज पावर. पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी भी तो बढ़ेगी. True. एंड Very true. सी इट इज नॉट अबाउट कि भाई लोग कहते हैं भाई आपने ऐसा अनग्लैमरस रोल क्यों कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो. भैया मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आप एक्टर है ना तो आपको एक ग्लैमरस रोल भी करना आना चाहिए, एक नॉन ग्लैमरस रोल भी करना आना चाहिए. Very हीरो भी बनना चाहिए, विलन भी बनना चाहिए, Yes. कॉमेडियन भी बनना चाहिए, सपोर्टिंग एक्टर भी बनना चाहिए. भाई आपको कला से प्यार है ना, आपको एक्टिंग से मतलब है तो एक्टिंग करो ना. और अगर आप अपनी कला में आप मंजे हुए कलाकार होंगे ना, अगर आप उसमें मास्टर क्राफ्टमैन ऑफ योर ट्रेड होंगे, इट विल फॉलो अपने आप. हु माइंड्स इट? आई हैव नथिंग अगेंस्ट ग्लैमर. आई डोंट माइंड इट, फ्रैंकली स्पीकिंग. आई वुड लव इट. व्हाई नॉट? हु वुड नॉट? मगर उससे कई ज्यादा
मेरे को क्राफ्ट से में से प्यार है, उससे मजा आता है मेरे को. And I want to be an actor. Do I love to act? Not because an actor would be rich and famous and very glamorous. Wrong intention. Intention should be love to perform. You are hungry for it. You have that creative hunger. Yes, you should play a role which world should remember for long. Absolutely. और यारा में जो मेरा रोल है ना, मेरा ही क्या, दुनिया में हर एक एक्टर का ड्रीम रोल होएगा. क्यों? देखिए अब ऐसा है, अभी कुछ टाइम पहले आपने भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि लड़का बोला थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ यू. आई एम 40 years old. इन यारा आई प्ले द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस में तकरीबन मान लिए फर्ज करिए 21 साल का होएगा. और ऑल्सो जो 59-year-old जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई बनता है, रिटायरमेंट के करीब आ गया हो. 40 तकरीबन 19 साल पीछे और 19 साल बाद. तो इट शो द रेंज, द वर्सटैलिटी के मैं क्या डिलीवर कर पा रहा हूं एज एन एक्टर. तो इट्स अ ड्रीम रोल. एक एक्टर थे हॉलीवुड में, सर लॉरेंस ओलिविया. उन्होंने ओथेलो किया था, हैमलेट किया था. अब ओथेलो और हैमलेट बिल्कुल अलग है. कोई कहेगा नहीं कि ये रोल उनका उन्हें नहीं किया. और सर लॉरेंस ओलिविया अलग है. 3 अलग लोग हो गए. एक ही आदमी ने कई रोल करे. मैं रिमार्केबली इन रोल्स की बात कर रहा हूं. सर लॉरेंस ओलिविया ही ओथेलो है ना, कोई नहीं कहेगा. सर लॉरेंस ओलिविया ही हैमलेट है, कोई नहीं कहेगा. ओथेलो और हैमलेट एक ही एक्टर ने किया, ना ना ना, इम्पॉसिबल. तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्टर, द पावर ऑफ एन एक्टर. So I think it's a dream role. Great. Now, my next question is, what path you took to get where you are today? Well, the path that I took to be here today, जिंदगी के कई मोड़ पे मेरे को 2 राह मिली हमेशा. एक राह थी जो दोस्तों ने बोला कि भाई ये राह पकड़ लो, अच्छा रहेगा. और दूसरी राह थी कि मेरे दिल और दिमाग ने बोला नहीं अली, ये राह पकड़ो, औरों की मत सुनो. They say a journey to 1,000 miles starts with a single step. मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल. मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. Yes. तो मैं अकेले चला था, कारवां बना. क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे कारवां या काफिला होता है. So that's the path. Thank you, Abha. Thank you very much. So that is the path I took. And I just listen to yourself and do what you are passionate about. जिस काम को करके मजा आता है ना, वो काम करें. मैंने फौज में सर्विस करी है. आईएम से मैनेजमेंट पढ़ के मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया. कॉर्पोरेट का मैं सीईओ रह चुका हूं एक कम उम्र में. मगर मजा आया, मालूम था, विजन था क्या करना है. और ये सब करते करते ना मैं थिएटर बहुत किया कि थिएटर पे गुजारा तो नहीं कर पाएंगे आप. यू नीड अ जॉब, यू नीड अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम. तो मैं अभी रोजी रोटी के लिए जॉब थी और पैशन के लिए थिएटर था. अब मैंने वो ही अपना पैशन, वही अपनी हॉबी अपने करियर में उतार दी है. एंड यारा इज अ मेक और ब्रेक फॉर मी. अगर मैं दुआ करता हूं कि आप लोग दुआ करें मेरे लिए कि आई ओनली सी सक्सेस आफ्टर यारा. आई हैव सीन रियल टफ टाइम्स. आसान नहीं ना. बहुत ग्लैमरस दिखता है पर्दे पे देखना. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. कड़ी मेहनत लगती है भाई, तब के तो सोना बनता है ना. द मोर कट्स ऑन अ डायमंड द बेटर द शाइन. और मेरे दिल पे जो जितने जख्म है ना, मैं जानता हूं कितने जख्म है वहां तक पहुंचने के लिए. तो आपने पूछा कि what made you take this path and you know what path did you choose? It wasn't easy. I took the path, the road less traveled, but then I became the highest number of TEDx talks. ये शर्ट भी TEDx, ये बांग्लादेश गया था, हिंदुस्तान के बाहर वहां की है इत्तेफाकन. I have seen myself on 70 mm.
ऑन सिनेमा। अभी मैं देखेंगे, एक वेब सीरीज भी आ रही है मेरी 31 जुलाई को। Okay. तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग, हम सबने सुना है। अब ये आपने भी सुना होगा, Yes. आपसे ही सुना था, और ब्रिगेड सुशील बसीन से, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ Yes. गेट ऑनलाइन। Online. Yes. मैंने ऑनलाइन मोटिवेशनल टॉक्स दिए, ऑनलाइन थिएटर किया, नाटक करे, ड्रामा किया। अब ऑनलाइन वेब सीरीज और फिल्में आ रही हैं। दैट्स द पाथ आई टुक। Okay. So now the final question is that what final message or word of inspiration you want to give to the audience who are watching you and who are going to watch you in Yara? Wow, thank you. But I'm a little disappointed to hear final message, final question. आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है भाई। और क्योंकि हमें मजा आ रहा है, तो अब मेरे को पूरा ये मालूम है कि हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको भी मजा आएगा। खैर, तो द पाथ इज, अभी जो टाइम्स चल रहे हैं ना कोरोना वायरस के, द डार्क टाइम्स दे कॉल इट, उसके लिए मैं आपको के लिए कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but have to sigh. When care's pressing you down a bit, rest if you must. But don't you quit. See, life is strange, huh? With its twists and turns, and many of us sometimes learns. Often a person turns about when he might have won, had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler is given up when he might have captured the victor's cup. Often the goal is further for a faint and faltering man. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. So don't quit. My school's motto, जहाँ भी स्कूल में पढ़ा बड़ा हुआ, लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी में बोर्डिंग स्कूल है, उसी का मोटो है नेवर गिव इन। हिम्मत मत हारो, हौसला रखो, चलते रहो। If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, crawl, but keep moving forward. आगे बढ़ते रहो। Very true, and that's truly inspirational. Fantastic poem, Major. Now I just want you to share your social handles with our viewers so that they can connect to you to wish you the success of Yara. Sure. See, I am very regular on Facebook. मुझे लोग कहते हैं आपको Instagram पे, Twitter पे या LinkedIn पे और रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल बेशक सही बात है, but I am more friendly on Facebook. Facebook मैं खुद अपना पर्सनली हैंडल करता हूँ and I am very regular. So it's मोहम्मद अली शाह on Facebook. MOHOMMEDALISHH। मेरा एक YouTube चैनल है इसी नाम से, आप YouTube पे अगर जाएंगे, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, शेयर करिए, शेयरिंग इज आल्सो फ्री। खुशखबरी, इट विल ओनली अलाउ मी टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें मेरे कुछ करीब 350 वीडियो के आसपास हैं, टीवी डिबेट्स हैं, फिल्मों के सीन हैं, एडवर्टाइजमेंट जो मैंने करे हैं, टेडेक्स टॉक्स हैं, जोश टॉक्स हैं, MS टॉक्स हैं, वीडियो बना के मैंने लगाए हैं इस पे। वो देखिए, वो शेयर करिए। उसका भी सेम नाम है। ट्विटर पे है मेजर अली शाह, वही इंस्टाग्राम पे भी है, और लिंक्डइन पे भी मोहम्मद अली शाह है। सो दीज आर द थिंग्स। सो प्लीज, आई मीन, और मेरे को जो भी यूट्यूब पे लिखता है ना, मेरे ऊपर कमेंट लिखता है, उसको 100% मैं जवाब देता हूँ, 100% बाय नेम। मैं खुद पर्सनली लिखता हूँ बाय नेम। हाँ, ये बात है कि थोड़ा देर हो जाएगा, मुझे 24 घंटे लग सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसको रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, भलाई आप आधे घंटे या 1 घंटे कम सो लीजिए, कोई बात नहीं,
किसी ने अगर अपने 2 मिनट भी निकाले हैं आपको मैसेज करने के लिए आपके यूट्यूब पे, आपके चाहने वालों में, आपके वेल विशर्स ने, तो उनको रिप्लाई पक्का मिलना चाहिए। Very right, very true. So, Major Muhammad Ali, that was really fantastic to interview today. And we, along with my all the viewers, wish you a great, grand success for your upcoming movie, Yara. Thank you for being थैंक with यू, us. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।